ابرو کرتے ہیں کوٹ ادو کے نواحی علاقے چوک سرور شہید کا، جہاں پر چوک سرور شہید کو تحصیل کا درجہ تو دے دیا گیا مگر تاحال فعال نہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی پراپر دفاتر بنائے گئے۔ اس وقت تحصیلدار خان بیگ ہمارے نمائندے چودھری امین رائے کے ساتھ موجود ہیں، مزید احوال جانتے ہیں ان سے۔ جی چودھری امین، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چوک سرور شہید میں، جو چند روز پہلے جو ہے تحصیل چوک سرور شہید کا درجہ دیا گیا، لیکن ابھی تک اس کے فنڈ ریلیز نہیں ہوئے، ابھی تک کسی قسم کے بھی دفاتر جو ہے وہ بھی قائم نہیں کیے گئے۔ میرے ساتھ تحصیلدار صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی آپ بتائیے گا، یہاں پر تحصیل کا درجہ تو دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی قسم کے دفاتر قائم نہیں کیے گئے، پراپر طریقے سے ڈی ایس پی صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں آ رہے، کیا ریونیو کے کام ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ انشاءاللہ ریونیو کے کام تو جتنے تھے تحصیلدار جب سے میری تعینات ہوا ہوں، 3 جولائی سے میری جہاں تعیناتی ہوئی ہے، پہلے سیٹ یہ ویکنٹ تھی، اب تحصیل یکم جولائی سے اناؤنس ہوئی ہے، اس کے مطابق تحصیلدار بطور تحصیلدار میں 3 جولائی سے متواتر یہاں کام کر رہا ہوں۔ عوام الناس کے جتنے بھی کام ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے متعلق وہ حل ہو رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بھی کوٹ کو ریونیو متعلق نہیں جاتا، ان کے مسائل یہاں حل ہو رہے ہیں۔ جہاں تک جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا تعلق ہے تو ان کا دفتر تو میرے یہیں ہے، میرے ساتھ ہی ہے، آتے ہیں ہفتے میں 1 یا 2 دن، بقیہ عدالتی امور وہاں ہی کوٹدو میں ابھی تک نمٹا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 1 یا 2 مہینے کے اندر رقبہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے، عمارتیں بننا شروع ہو جائیں گی، عمارتیں بنتے ہی سارے دفاتر یہاں موجود ہوں گے، انشاءاللہ 2 مہینے میں کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا خان بیگ سے آپ بتائیے گا، یہاں پر جو رجسٹری کے حوالے سے لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے تھے، کوٹدو جانا پڑتا تھا، اب یہاں پہ کام ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو کتنی فیسلٹی دی جا رہی ہے یہاں پہ؟ جہاں تک سب رجسٹرار کا تعلق ہے تو وہ تحصیل کی سطح پر ہے، کوٹدو میں فی الحال کام کر رہا ہے، محمد اسحاق خان سب رجسٹرار ہیں۔ کوٹ سرور شہید کی جتنی ہی رجسٹریاں ہیں وہ ابھی تک سب رجسٹرار صاحب کے، میرے پاس اختیار سب رجسٹرار کا نہیں ہے، تحصیلدار سب رجسٹرار محمد اسحاق خان بیانات بھی وہی لے رہے ہیں، اور جتنی چوک سرور شہید اور اس کے ملحقہ علاقوں کے رجسٹریاں ہیں وہ بھی وہاں ہو رہی ہیں۔ البتہ ان کے رجسٹری کے فوراً بعد بحکم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہم دیہی مرکز مال پہ ان کے انتقالات پاس کر کے ان کی نقولات جناب ڈپٹی کمشنر کو روزانہ کی بنیاد پر نمبر انتقال اور نقل انتقال ارسال کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے خان بیگ صاحب کی بھی بات سنی ہے، یہ تحصیلدار ہے چوک سرور شہید، ان کا کہنا ہے کہ ہم پراپر طریقے سے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے کام دیکھے جا رہے ہیں، اور 2 ماہ کے اندر جو ہے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ 2 ماہ کے اندر جو ہے یہاں پر تمام دفاتر قائم کیے جائیں گے جو کہ عوام کو سہولیات میسر ہوں گی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں اوستا محمد سے، رپورٹ کرے ہیں ذوالفقار کھوسا۔ کیرتھر کینال کی ذیلی شاخوں میں پانی کا بحران، ذیلی شاخوں میں 3 ماہ سے پانی بند، آبادگار سراپا احتجاج، صوبائی وزیر آبپاشی کا نوٹس۔ صوبائی وزیر آبپاشی میر طارق خان مقصی کی جانب سے کیرتھر کینال کی ذیلی نہروں میں پانی کی کمی کا نوٹس لینے کے بعد محکمہ آبپاشی کیرتھر کینال کے افسران کی جانب سے ہیوی مشینوں کے ذریعے کارروائی کر کے کیرتھر کینال کی ذیلی شاخ نورپور سمیت دیگر کینالوں میں ٹیل کے آبادکاروں کو پانی کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیرتھر کینال کی ذیلی شاخوں میں عوام کو پینے کا پانی 3 ماہ سے نہ ملنے پر صوبائی وزیر ایریگیشن نواب زادہ میر طارق خان مقصی کا نوٹس دینے کے بعد محکمے کے افسران کا مختلف کینالوں پر قائم ناجائز واٹر کورسوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، ناجائز واٹر کورسوں کو بند کر کے نورپور شاخ، لنڈی شاخ، سیر مانر سمیت دیگر کینالوں میں پانی کی فراہمی کر دی گئی ہے، جس سے آبادکاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بورے والا سے تحصیلدار شاہد نواب گجر کی ناجائز منافع خوروں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ بورے والا روز بروز مصنوعی مہنگائی کرنے والے ناجائز منافع خوروں نے شہریوں کے ناک میں چنے چبا رکھے تھے، جس پر تحصیلدار شاہد نواب گجر نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے لکڑ منڈی، معصوم شاہ روڈ اور جویا روڈ میں کارروائیاں شروع کی۔ شہریوں کو مقررہ قیمت سے زائد نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے والوں کو ہزاروں روپے جرمانے کر دیے۔ سبزی فروشوں اور کریانہ اسٹورز اور ہوٹل مالکان کو قانون شکنی پر ہزاروں روپے جرمانہ کیا گیا۔ مزید گورنمنٹ کی مقرر کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کرنے کی وارننگ جاری کی۔
मोटियारी जिला में 159 इमाम बारगाहों से 8 इमाम बारगाहें इंतहाई हसास और 23 इमाम बारगाह हसास दी गई। मोटियारी पाक आर्मी पुलिस के हमरा रेंजर्स तैनात हो गए। मजालिस जुलूस और मातमी जुलूसों पर वीडियो रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्लानिंग तैयार। एसएसपी के जिला उलमाए कराम अमन कमेटी से बैठक। मोटियारी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार। 992 मुख्तलिफ इमाम बारगाह से मातमी जुलूस बरामद। 269 मजालिस होंगी सिक्योरिटी के लिए। 1998 पुलिस एहलकार के साथ 100 आर्मी और 170 रेंजर्स के एहलकार तैनात। मोटियारी जिला भर में निकलने वाली हसास इंतहाई हसास मजालिस की वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाएंगे। मातमी जुलूस और मजालिस के दौरान वॉक थ्रू गेट मस्बत किए जाएंगे। मोटियारी उलमा कराम में हाफिज बशारत अहमद, सैयद एहसन अली शाह और जिला भर के उलमा ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जहलम से। 4 रोज कबल सैला के मुकाम पर दरियाए जहलम में डूबने वाले 4 अफराद की लाशें मिल गईं। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 4 रोज कबल सैला के मुकाम पर दरियाए जहलम में डूबने वाले 4 अफराद की लाशों को 4 दिन के मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद दरिया से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मैयतें घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। लाशों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू 1122 जहलम की गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन का दायरा कार वसी करते हुए डूबने वाली जगह से 12 किलोमीटर तक इलाके को सर्च किया गया। डूबने वाले अफराद की शनाख्त मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद बिलाल, असद और जाहिद के नाम से हुई, जबकि इनमें से 3 अफराद का ताल्लुक जहलम के नवाह इलाके जखमकाल का और एक आज जकर से है। इससे कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। डूबने के एमरजेंसीज में इजाफा और कीमती इंसानी जानों का ज्यादा तशवीशनाक है। रेस्क्यू आपकी मदद को मौजूद है, मगर एहतियाती तदाबीर इज्तिमाई समाजी जिम्मेदारी है। जिला की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। लोगों से अपील है कि दरियाए जहलम में नहाने से परहेज करें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। राहील अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खानेवाल में पीपल्स कॉलोनी और दीगर इलाकों का दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का खानेवाल शहर में सफाई की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खानेवाल शहर में साफ सुथरी और उम्दा सड़कें देखकर सराहा। खानेवाल में सफाई और सड़कों की सूरत हाल देखकर इत्मीनान हुआ। खानेवाल इंतजामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसके समेत हर शहर को साफ सुथरा देखना चाहता हूँ। शहरों में सफाई सुथराई बुनियादी जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरकट हाउस खानेवाल आमद। लॉन में पौधा लगाकर मानसून चदरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरकट हाउस खानेवाल में पीटीआई के उगारों और कारकुनान से मुलाकात और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खानेवाल के अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सरगोदा से, जहां पर किंग्स अस्पताल सरगोदा की तमाम जदीद सहूलियात का आगाज कर दिया। इसी हवाले से एक शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन भर से डॉक्टर्स, वकला, उस्ताद, मीडिया नुमाइंदगान और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और हजूर सरवर कायनात की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया गया। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नजफ अली भट्टी ने अपने खिताब में किंग्स अस्पताल की तमाम खसूसियात, सहूलियात और डॉक्टर से मुतालिक आगाही फराहम की। उनका कहना था किंग्स अस्पताल सरगोदा का एक मुनफरिद अस्पताल होगा, जिसमें इमरजेंसी के साथ साथ ICU, CCU, नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फार्मेसी, एम्बुलेंस सर्विसेज की सहूलत के साथ 365 दिन मुयसर होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सिकंदर बड़ाइच और अफजल फारूक एडवोकेट ने इस इक़दाम को खूब सराहा। तकरीब के अख्ताम पर चौधरी जुल्फिकार अली भट्टी ने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। DPO भक्कर अना ताहिर रहमान खान के हमरा DC भक्कर सैयद मूसा रजा तहसील दरिया खान ने मुहर्रमुल हराम के दौरान निकाले जाने वाले मरकजी जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक जिला में मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन और मिसाली हम आहंगी के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की अहम जरूरत है, ताकि अयाम मुहर्रम में हस्ब रिवायात अमन बरकरार रहे। ये बात DPO भक्कर अना ताहिर रहमान खान ने DC भक्कर सैयद मूसा रजा के हमरा दरिया खान में मुहर्रम रूट्स के मुआयना का दौरान गुफ्तगू करते हुए की। इस मौका पर DSP सर्कल दरिया खान, AC दरिया खान, मेंबरान अमन कमेटी, ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान समेत दीगर मुतल्लिका इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर DPO भक्कर आना ताहिर रहमान खान ने पुलिस अफसरान को अहकाम जारी किए कि मुहर्रमुल हराम के दौरान इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब समेत CCTV फुटेज कैमरों की हमा वक्त फंक्शनल हालत में दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वेरका से। राजपूत ग्रुप और गुजर ग्रुप में तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। फायरिंग से राजपूत ग्रुप के 3 अफराद शदीद जख्मी जुल्फिकार जख्म किताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। दोनों ग्रुपों में 2 साल से मुकदमेबाजी की रंजिश चली आ रही थी। गुज़िश्ता साल दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी गई थी। सुलह के बावजूद गुज्जर ग्रुप ने रंजिश न गवाई। गुज्जर ग्रुप ने जुल्फिकार, राशिद और मंजूर को यरगमाल बनाकर गोलियां मारी। तीनों जख्मियों को रेस्क्यू के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
खबर शामिल करते हैं कमालिया से। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इरफान हिजरा की जेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी में शहर के सीवरेज मिसाइल और सीवरेज लाइन्स की तब्दीली के बारे में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर मोहम्मद जोहेर, SDO पब्लिक हेल्थ मोहम्मद सलीम, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज मोहम्मद सगीर, साबिक चेयरमैन बल्दिया राय जियाउल्लाह, साबिक काउंसलर्स मोहम्मद रफीक गुज्जर, जवार सरविया, हाजी मोहम्मद देशचट और सब इंजीनियर एहसान यूसुफ ने शिरकत की। शुरका इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इरफान हिजरा ने कहा कि शहर की ज्यादातर सीवरेज लाइन ज्यादा मयाद होने की वजह से आए रोज ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना है। इनकी तब्दीली के लिए पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कमेटी को कंपनी को तहरीर किया जाए ताकि मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल मुमकिन हो। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर DPO मंडी बहाउद्दीन की हिदायत पर जराइम पेशा लोगों पर नजर सख्त कर दी गई है। गुज़िश्ता रात पेट्रोलिंग पुलिस हेड फकीरा ने हेड फकीरा पुल पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान मंडी बहाउद्दीन की तरफ से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी AHA 604 को तलाशी की गर्ज से रोका। गाड़ी के रुकन पर गाड़ी में मौजूद एक शख्स ने भागने की कोशिश की, जिसे हसनैन गोंदल इंचार्ज पेट्रोलिंग हेड फकीरा ने पुलिस मुलाजिमीन के हमरा गिरफ्तार करके जबकि गाड़ी की चेकिंग की तो गाड़ी में से 12 बोतल विलायती शराब बरामद हुई। कार ड्राइवर समेत खिजर हयात सिकना 4 चकभलवाल को गिरफ्तार कर लिया। थाना मयाना गोंदल में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। इस हवाले से SHO थाना मयाना गोंदल सनाउल्लाह मरड़ का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिर हुसैन कोकर की अवलीन तरजीह है कि जिला मंडी बहाउद्दीन को मंशियात और मंशियात फरोशों से पाक किया जाए। सरगोदा से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज साकिब अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा के इलाका रहमत पार्क में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से मुकामी वकील घर की दहलीज पर कत्ल। नामालूम मुलजिमान क्लाइंट बनकर वकील मोहम्मद अली हमदानी की रिहाइशगाह रहमत पार्क आए, जिन्होंने केस के लिए बात करते हुए उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बायस मोहम्मद अली हमदानी शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। अस्पताल मुंतकिल होने के दौरान वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, जबकि वकला की कसीर तादाद भी DHU टीचिंग अस्पताल पहुंच गई। जी बिलाखिर अफसर शाही का गुमशुदा कुत्ता मिल गया। गुजरांवाला 2 रोज कबल कमिश्नर गुजरांवाला का गुम होने वाला कुत्ता मिल गया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, कमिश्नर का कुत्ता बच्चों से बरामद। 2 रोज कबल गुम होने वाला कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फिकार घुमन का कुत्ता मिल गया। बच्चे कुत्ते को लेकर घूम रहे थे कि पहचानने पर कुत्ता छोड़कर भाग गए। याद रहे कि कुत्ते की तलाश के लिए कारपोरेशन अमला और पुलिस मुतहरिक थी और म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से रिक्शों पर कुत्ते की गुमशुदगी के ऐलानात भी करवाए गए थे। पिंडी की बैनुल सुबाई रोड पर वाक़या ढोक भट्टा टूल प्लाजा जो अपनी करप्शन की कहानी सुना रहा है, जबकि टूल प्लाजा से रोजाना लाख रुपए इनकम होती है, जबकि ढोक भट्टा टूल प्लाजा था पिंडी खेप रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि इस रोड पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता। रोड पर तैनात बलेदार तनख्वाह तो लेते हैं मगर रोड मरम्मत नहीं करते, जबकि महकमा हाईवे के अफसरान जिन्हें भर लंबी तान कर सोए हुए, जबकि मुसाफिर और गाड़ियों का रोज जानी और माली नुकसान हो रहा है। आसिफ साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ साबरी बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी के जो बैनुल सुबाई रोड है जो कराची से लेकर रावलपिंडी तक आती है, टूट फूट का शिकार है। और इस रोड पर एक टूल प्लाजा बनाया गया है जहाँ पर यहाँ से जो गाड़ी मालकान है उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर हर गाड़ी से 100 से 120 रुपए लिए जाते हैं, जबकि इस टूल प्लाजे की आमदन डेली जब ये प्राइवेट होता है तो 1,60,000 या 70,000 होती है। जब ये सरकारी तौर पे आ जाता है तो इसकी आमदन 60 से 70,000 होती है। इस रोड को जो टूट फूट की वजह से ना ही मरम्मत किया गया है और ना ही इसको बनाया जा रहा है, जबकि इस रोड पे तहसील पिंडी घेब में 56 के लगभग बेलदार को तैनात किया गया है, मगर इन बेलदारों में से कोई भी बेलदार यहाँ पर काम पे नहीं आता, जिसकी वजह से रोड में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से कई हादसात भी रोनमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों भी यहाँ पर 2 लोग जाँ भाग हो चुके थे, इससे पहले कुछ ख़वातीन भी जाँ भाग हो चुकी थी, और ये वही जगह है जहाँ पर आज से कुछ साल कबल 28 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी थी। तो ये रोड महकमे हाईवे की लापरवाही के बायस जानी नुकसान का बायस बन रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं उनको कीमती नुकसानात हो रहे हैं, उनके आए रोज़ उनको मरम्मत कराना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी मालकान ने भी इस हवाले से कई बार एहतजाज किया है और शहरियों ने भी इस हवाले से एहतजाज किया है। तो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, इसमें कहा गया था कि करप्शन से पाक ये तारीख
बनाई जाएगी और हुकूमत बनाई जाएगी, मगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में यहाँ पर करप्शन की जा रही है। तो यहाँ पर शहरी ने मुतालबा किया है कि हाईवे में जो काली भेड़ें हैं उनको फिलफौर यहाँ से निकाला जाए और इस रोड को तामीर किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सफरी सहूलियात मुहैया हो सके। जी। शोरकोट के नवाही इलाके घग के रिहायशों का फेस्को डिवीजन सुल्तान बाहू हमले से मसला तूल पकड़ गया। मुलाजमीन की मुबैना तशद्दुद से 13 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। शोरकोट के नवाही इलाके एक घग के रिहायशी का फेस्को डिवीजन सुल्तान बाहू हमले से मसला तूल पकड़ गया। सुल्तान बाहू एक्शन के हमले की मिली भगत से एक घग के रिहायशी के लिए जारी किया गया ट्रांसफार्मर 497 जीम्बे में खराब ट्रांसफार्मर से तब्दील कर दिया, जिसकी दरख्वास्त चीफ फेस्को सुल्तान बाहू को करने पर एससी फेस्को ने एक्टिंग एसटीओ और लाइनमैन को गफलत लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया, जिसकी रंजिश में एक्शन सुल्तान बाहू ने मुअत्तल होने वाले एसटीओ के हमरा मुलाजमीन को इलाके से मीटर उतारने के लिए भेज दिया। मीटर उतारने से मना करने पर फेस्को मुलाजमीन ने एक घग रिहायशी खातून से बदतमीजी की, जिसे मना करने पर फेस्को मुलाजमीन ने खातून के 13 साला बेटे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक घग रिहायशों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वाक़े के मुतालिक फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शोरकोट जिला जंग और चक नंबर 1 गाग से मैं बोल रहा जनाब, और साढ़े जनाब चक नंबर 1 गाग का ट्रांसफार्मर सड़ गया। असी वापडाले नाल बड़ी कोशिश की, बड़े फोन कराए, उन्होंने साड़ी कोई गल नहीं सुनी। लिहाजा इस वापडा से बिजली बंद होने की वजह तो साड़ी मरीजा अम्मा हाई और साड़ी फौत हो गई, ठीक हो गया जी। उस बाद असी वापडाले नाल एहतजाज किया, रोड बंद किया, वापडाले आए और पुलिस वाले आए, उन्होंने वजह तो साढ़े नाल जनाब खिलाफत तो एक्शन साहब हूँ इस टाइम साढ़े उत्ते जनाब बहुत गलत बयानी करा रहे हैं और बंदे जेडे मुअत्तल होए हैं उन्होंने घल के साढ़े बच्चों के नाल उन्होंने जनाब हथोपाई की है, बच्चे की बांह तरोड़ी राड़ मार के माई के नाल तशद्दुद किया ने, गालां मंदियां कढ़ियां ने, असी मीटर भी कट्टे ने। असी हुण जनाब एहतजाज करके इस वास्ते बच्चे नूं लैके आ गए हस्पताल, उहदे डॉक्टर कटाने और लिहाजा साडी वज़ीर आला वास्ते दरखास्त है सानू इंसाफ मिले और अपने एक्शन साहब नूं जनाब इत्थों डिसमिस किया जाए और जेडे साडे मुलाजम आए ने बगैर ड्यूटी तो उन्होंने आके साढ़े मीटर कट लाए, मुअत्तल करके उन्होंने मुअत्तल होए और दोबारा मीटर कट्टन वो ही आ गए। सारे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एहतजाज किया है, असी दोबारा मुड़ कर साएँ इंशाल्लाह। अगर सानू इंसाफ ना मिले दोबारा फिर असी ये हंगामा राय करके रोड बंद करांगे। साड़ी अपील है वज़ीर आला वास्ते, साढ़े वास्ते जनाब खसूसी और खसूसी साढ़ा इंसाफ मिला जाए और इन्हें बिजली वाले वास्ते जनाब जो इन्हों की सजा इन्होंने सजा मिल जाए। शुक्रिया। हुकूमती इमदाद और मुखीर हजरात की इमदाद का मुस्तहिक कादिरपुरा का रिहायशी 30 साला नौजवान गुलाम अब्बास जो कि रोड हादसे में एक टांग से माजूर हो गया, जिसकी वजह से गुलाम अब्बास काम काज नहीं कर सकता और घर में अक्सर फाका कशी अपना डेरा जमाए रखती है। इस हवाले से देखते हैं कबीरवाला से राहिल अब्बासी की ये रिपोर्ट। ये है कादरपुर राह का 30 साला नौजवान गुलाम अब्बास जो कि एक रोड हादसे का शिकार होकर एक टांग से महरूम हो गया है। घर में मौजूद जमा पूंजी गुलाम अब्बास के इलाज मुआवजे पर खत्म हो गई है, मगर इलाज मुकम्मल ना हो सका और लोगों से कर्ज लेकर इलाज करवाना घर वालों की मजबूरी बन गई है। माजूर होने वाला नौजवान गुलाम अब्बास काम काज करने से कासिर है, जिसकी वजह से घर में अक्सर फाका कशी अपना डेरा जमाए रखती है। गुलाम अब्बास की बीवी का कहना है कि मेरे खावंद की टांग कट गई है एक्सीडेंट में, हम बहुत गरीब हैं, हमारे साथ इमदाद की जाए। कभी हमारा खाना बनता है, कभी नहीं बनता, कभी ऐसे ही सो जाते हैं, हमारे साथ इमदाद की जाए। माजूर नौजवान गुलाम अब्बास का कहना है कि मैं मजदूरी की वजह से कोई काम नहीं कर सकता और भीख मांगना मेरे बस में नहीं। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी टांग कट गई थी। मैं चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेरी मसनूई टांग बनवा दें और मुझे मेरे मुतल्लिक कोई काम दें ताकि मुझे किसी से भीख न मांगनी पड़े। मैं रोज़ी मजदूरी कर नहीं सकता। खान साहब मेरी इमदाद करें, मेरी मसनूई टांग बनवा दें और मुझे कोई नौकरी दें ताकि मैं अपना घर का सरकट चला सकूं। माजूर नौजवान गुलाम अब्बास वज़ीर आला पंजाब और मुखय्यर हजरात की इमदाद का मुंतज़िर ताकि मसनूई टांग लगा कर काम काज करने के काबिल हो सके और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके।